Welcome to Mumbai, the city of dreams. तो ये है मुंबई, जिसे लोग सपनों का शहर भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन सपनों को पाने की चाहत रखते हैं। खैर, ये बातें तो हमें भी पता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मुंबई शहर वाले ही जानते हैं। तो आइए आज कुछ बातें हम मुंबई शहर वालों से ही करते हैं कि उनका क्या तजुर्बा रहा है इस मुंबई शहर को लेकर। सो मुंबई को सुन के मुझे ऐसा याद आता है, इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे चीज़ें बहुत रफ्तार में चलती है। इफ़ यू डोंट रन फास्ट यू विल स्टे बैक। So when I heard Mumbai, there are few things which came into my mind. One of them is a city that never sleeps. Another is a financial capital of India, and a place where multiple people from multiple religion live together peacefully. So these are the few things which came into my mind when I heard Mumbai. Thank you. वैसे कहीं ना कहीं इन्होंने सही कहा। मुंबई एक लौता ऐसा शहर है जहाँ कोई कभी नहीं सोता, क्योंकि ये एक सपनों की नगरी है। यहाँ पर अगर आप धीरे चलोगे तो जरूर गिर जाओगे। खैर, ये बातें तो कई बार मुंबई निवासी और हम भी कह चुके हैं, लेकिन कुछ बातें बाहर देश वालों से भी जान लेनी चाहिए। विदेशी मेहमान भी तो मुंबई घूमने आते हैं, तो चलिए कुछ बातें उनसे भी हो जाए। It's very clean and warm and very peaceful. This is the first impression of me. So that's a huge question. I only arrived like 2 days ago here in Mumbai, and so I try to look and see the most of it. I think it's a wonderful city. It's a very exciting city. It's a city which is also very dense, like a lot of people, a lot of traffic. But I think it's also a city which has a lot of sides. You have the inner side, you have the seaside, and I think that, and I hope really that the city will grow. We went with the metro. I think that's a great evolvement, and so that there will be a good public transport for a lot of people. Well, I'm amazed about the different cultures and religions that are shared here in the city. The only thing I can say that I'm in love with India, and especially with Bombay, is that my first time in Bombay, not my first time in India. And I've been very surprised about the vitality of the city and the people. It seems to me that some people, of course not everybody, but some people has a good quality of life in the city. Of course, I'm conscious. I know that there is much poverty as well, but I hope that will change in the future through education. But people is very, very, very adorable here. Our experiences have been always very, very positive. I think they are just people. In Korea, when I felt about the people, it's the same because it's very different from North India. In North India, many of people try to talk to me and take some picture, or it's little disturbing me. But here, Mumbai's people are so very similar to our country. Development. Well, I see that it's developing. So you see huge constructions. You see that neighborhoods have to be changed. People need to have basic living, basic conditions to live. So in that aspect, I think that there can be a lot of more development upcoming. So we know there's a lot of resources. Sometimes it's also how resources are divided. Some people have a lot of resources. Many people don't have a lot of resources. So there's a lot of work to be done for the future. It's clean and crowded. It's clean and crowded, and just two. Okay. I'm sorry, just second days of Mumbai. Okay. What are your bad experiences? Clean? Bad experience? I'm sorry? You had any bad experience in Mumbai?
Various what? Various bad experience. Like you find something very bad, as in foreign. Oh, nothing so special experience, not yet. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Well, there is a mix of feelings here about this. I think there is people who are very conscious about the cleanliness and to keep the city tidy. Other people not so much, but it's more than a question of dirty or clean. It's a question of having being consciousness the importance of the environment to keep the seas, the air and the environment clean for everybody. हाँ, तो इनसे बातें करके तो हमें काफ़ी मज़ा आया और उम्मीद है कि उन्हें भी ज़रूर मज़ा आया होगा और उनका ये सफ़र मुंबई का मंगलमय हो और रोचक हो, इसकी हम दुआ करते हैं। खैर, मुंबई के इस सफ़र में काफ़ी सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उनमें से एक ऐसे शख्स से भी हम मिले जिन्होंने अपना मुंबई से सालों का रिश्ता हमें चंद मिनटों में ही बता दिया। हम लोग को यहाँ सब पब्लिक भी अच्छा है, यहाँ का रहन सहन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम लोग हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जब यहाँ हम हैं 20 साल से। और यहाँ पे जब फोटो लेने आते हैं तो क्या है उनका व्यवहार कैसा रहता है? अच्छे रहता है। तो मतलब आपको एकदम सबसे बेकार क्या लगता है यहाँ पे कि लोगों को नहीं करना चाहिए वो चीज़ ज़्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं? देखिए यहाँ जो गुटखा उटका खा के थूकते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है। और कुछ नहीं, सब ठीक है। जब हम मुंबई को लेकर ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ लोगों के विचार इस मुंबई शहर को लेके धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो आइए उन लोगों से भी बातें कर लेते हैं जिन्हें ये समस्याएं आम तौर पर दिख रही हैं। मुंबई का डार्क साइड ये है कि अभी फिलहाल कैसा है कि जैसे जेनजी आ रहे हैं, मतलब तो गर्ल्स के लिए सेफ नहीं उतना मुंबई एज कंपैरेटिवली जब पहले था, क्योंकि कैसा है कि रात को बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। भले इधर पुलिस प्रोटेक्शन है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट बार बार होते हैं। तो ये एक मुंबई का डार्क साइड है, बाकी तो मुंबई अच्छा है पूरा। अच्छा, तो आप जब से यहाँ आए हो तब से आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा एज इन पर्सन? स्ट्रगल एज इन अभी मेरा रिसेंटली कॉलेज खत्म हुआ है, तो अब फिलहाल तो जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो वही फिलहाल स्ट्रगल है और तो कोई नहीं है। एजुकेशनल इन्फ्लेशन वगैरह? हाँ, इन्फ्लेशन देखा जाए तो कुछ सालों में, पिछले 5-10 सालों में बढ़ा है। जब से 2014 से जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से इन्फ्लेशन बढ़ा है, पर वो वक्त के साथ साथ बदलता भी है, तो वही है। बेस्ट थिंग अबाउट मुंबई? बेस्ट थिंग ये व्यू, ये हेरिटेज बिल्डिंग्स, जैसे कि वो वहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ ताजमहल बिल्डिंग है, गेटवे ऑफ इंडिया है और फ्लोरा फाउंटेन भी है। इसका अभी रिकंस्ट्रक्शन मतलब थोड़ा चल रहा है शायद। और तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है यहाँ पर, तो यही सब। मरीन ड्राइव भी है नजदीक में। जब से आप यहाँ हो मुंबई में, तब से आपको कौन सी ऐसी चीज अलग लगी मेरे? शहर? हाँ, तो मैं टिपिकली मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हो, तो मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन जो बाहर से आएंगे गांव के वहां से, तो उनके लिए हो सकता है कि ऊंची ऊंची इमारतें, अच्छे रास्ते, उनके लिए सब नया हो। और ये फेरी राइड्स, वो सब चीजें। मराठी बोलो, ये वैसे एजेंडा मतलब कुछ लोगों ने गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है, क्योंकि कैसा है कि मराठी बोलने में कोई ये नहीं है कि तुमने बोलना ही चाहिए, लेकिन हाँ, तुम अगर नहीं बोलोगे, मतलब तुम अगर उसको सामने से कुछ गलत उल्टा जवाब दोगे तो तुमको फिर बैकफायर हो सकता है वो, क्योंकि मुंबई जो है वो मराठी लोगों की है, तो इसीलिए। तो यही है मुंबई शहर, लेकिन अधूरा। पूरा मुंबई शहर वो है जहाँ पर अमीरों के लिए तो जगह है, लेकिन निचले वर्ग के लोगों के लिए भी एक जगह है। इसीलिए तो इसे मुंबई कहते हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसके लिए एक छोटी सी जगह ज़रूर होती है। उन्हीं जगहों में से एक है धारावी, जहाँ पर हम गए और कुछ लोगों से बातें की कि उन्हें क्या लगता है इस मुंबई शहर के बारे में और उनका क्या तजुर्बा रहा है इस मुंबई शहर को लेकर। मुंबई एक बेस्ट शहर है, महानगर है, पब्लिक बहुत कैसे भी रह सकती है यहाँ। अमीर गरीब कोई सी की पब्लिक यहाँ रह सकती है।
धारावी के बारे में क्या बोलना चाहूंगा? धारावी गरीबों का सहारा है। यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, काम वैसा ही है, कचरा वगैरह साफ नहीं, गंदगी ज्यादा है। ये सब पे क्या कहना चाहते हो आप? ये सब काम ऐसा उठता नहीं कभी है? उठता है, तो हफ्ते हफ्ते में उठता है। और यहाँ पे सामान सब चीप क्वालिटी मिलता है, कैसा मिलता है मतलब? यहाँ हर चीज छोटा बड़ा सामान अच्छा मिलता है। कुछ बदलाव देखना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं? कैसा? अरे एक अच्छा शहर हो, कल्चर हो, एक नया पार्क वगैरह हो। क्योंकि हर मतलब गंदगी में सबसे पहले नाम धारावी का ही आता है। हाँ, ये तो है। तो ये आप लोग कैसा फील करते हो मतलब? अरे आपके लिए प्राउड मोमेंट है ये क्या है? हम लोगों के लिए यह है कि धारावी अच्छा से अच्छा हो। वॉशरूम ये सब की फैसिलिटी कैसे है यहाँ पे? वो बहुत गंदगी रहती है। गंदगी रहती है वॉशरूम। मुंबई के बारे में कुछ बोलिए। मुंबई अच्छा एक जगह है, अच्छा कमाने दमाने के लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा कारोबार भी है इधर, सब बाहर से लोग आते हैं, काम धंधा करते हैं, बहुत अच्छा है। इधर के लोग भी अच्छे हैं। धारावी में अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, एकजुट रहते हैं सब लोग। कितने साल से रह रहे हो? मैं लगभग इधर 9 साल हो गया मेरे को। छोटा सा तभी से आया था इधर मुंबई, अभी तक धारावी में हूँ मैं। अगर आप मुंबई का फर्स्ट नाम सुनते तो आपके माइंड में क्या मतलब ज्ञान आता है कि क्या होगा यहाँ पे? अगर में फर्स्ट नाम पूछते हैं तो बम्बा देवी ही आता है मेरे ख्याल से। आप पहले बार स्टे कहाँ किए थे? पहले बार मैं धारावी। और पहले वे मीरा रोड। मतलब बचपन से रहे हो? हम बचपन से लगभग, मेरा गांव यूपी है, मैं यूपी में रहता हूँ, लेकिन इधर में 9 साल हो गया मेरे को। धारावी में कुछ बदलाव चाहोगे? अब बदलाव चाहते हैं, थोड़ा ट्रैफिक इधर बाकी और बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए, बस यही सब है। और बाथरूम का कैसे? बाथरूम का थोड़ा दिक्कत होता है, क्या करें, होता है, सरकार ध्यान दे इस पे। खाना पीना सब? हाँ, खाना पीना इधर बहुत सस्ता है, बाहर से बहुत सस्ता है इधर खाना। 20 रुपए में पूरी भाजी मिल जाता है, खाना 50 रुपए में मिल जाता है। इधर से सस्ता किधर भी नहीं है धारावी से। तो यही है मुंबई। उम्मीद है इस सफ़र में आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, जहाँ पे हमने ये देखा कि कहीं पे चमचमाती गाड़ी है तो कहीं पे धूल में सनी हुई कार, कहीं पे लंबी ऊंची इमारतें तो कहीं पे झुक्की झोपड़ियाँ, कहीं पर रोज़गार और काम और भाग दौड़ तो कहीं पे बेरोज़गारी, खून पसीने की मेहनत और दिन रात की लगन, और कहीं सुकून की ज़िंदगी है तो कहीं पर पल पल कुछ नए किस्से, कहानियाँ और रोचक सफ़र। इसी के साथ हमारा ये मुंबई का सफ़र भी ख़त्म होता है और ज़िंदगी का एक नया किस्सा शुरू। तो मिलता हूँ आपसे फिर कभी नई मस्ती, नई उम्मीदें और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुजल झा आपको अलविदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री से ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप अपना समय किसी अच्छी जगह पर खर्च किया होगा और आपके जीवन में मैंने एक बेहतरीन लम्हा जोड़ने की कोशिश की होगी। नमस्कार।